محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ شہر میں 7 سالہ معصوم بچے کا اغوا و قتل کی واردات سے سنسنی، ذاتی دشمنی یا پھر توہم پرستی، عوام کشمکش میں، کئی افواہیں گشت، محکمہ پولیس تحقیقات میں مصروف۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی جانب سے ماہ رمضان میں سحری و افطار کی نظام الاوقات کی رسمی اجرائی و ماہ رمضان کی دی مبارکباد۔ 7 سالہ معصوم بچے کی قتل کی واردات پر رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے کیا افسوس کا اظہار و قاتلوں کو جلد جلد گرفتار کرتے ہوئے پھانسی کی سزا دینے کا محکمہ پولیس سے کیا مطالبہ۔ اگادی تہوار کے موقع پر جماعت اسلامی نظام آباد کی جانب سے اگادی کارٹ کی ضلع پولیس کمشنر کیا ناگراجو کے ہاتھوں افتتاح۔ راجستھان میں زیر علاج مریض کی موت پر ڈاکٹر پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کے غم میں ڈاکٹر نے کی خودکشی۔ اس واقعے کے خلاف شہر نظام آباد میں IMA کی جانب سے درج کیا گیا احتجاج۔ مہنگائی سے پاک ہندوستان کے لیے کانگریس پارٹی مائنارٹی سیل صدر عرفان علی کی قیادت میں شہر کے اقلیتی علاقے میں زوردار احتجاج درج۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کے نئے برج علاقے میں ایک 7 سالہ معصوم بچے کا کل اغوا اور آج معصوم کی نعش اسی علاقے کے کینال میں برآمد۔ ہاتھ بندھے ہوئے، منہ پر کالا کپڑا ہونے کے سبب مختلف افواہوں کا بازار گرم۔ نامعلوم خواتین کی جانب سے اغوا کرنے کا ہوا انکشاف، ذاتی دشمنی یا پھر کسی خزانے کی تلاش، محکمہ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری۔ نظام آباد شہر کے آٹو نگر میں نئے برج کے نزد جمعرات کی سپہر سے لاپتہ ہونے والے معصوم لڑکے کی نعش D53 کینال میں دستیاب ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق آٹو نگر میں واقع مسجد عائشہ سے متصل مکان میں کرائے سے رہائش پذیر محمد یونس، جو پیشے سے لوری ڈرائیور ہے، ان کا 7 سالہ لڑکا محمد فیض کل سپہر 4 بجے سے اچانک لاپتہ ہوا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکے کی گمشدگی کی اطلاع کو عام کیا گیا، لیکن آج صبح محمد فیض کی نعش D53 کینال بڑی نہر میں تیرتی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کو اطلاع دینے پر نعش کو باہر نکالا گیا۔ اس وقت لڑکے کے دونوں ہاتھ کالی ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور گلے میں دوپٹہ بھی ڈالا ہوا تھا۔ مقتول فیض کے والد محمد یونس کے مطابق محمد فیض گھر سے نکلتے وقت دوسرے کپڑوں میں تھا، لیکن نئے کپڑے میں اس کی نعش پائی گئی کا شبہ کیا جا رہا ہے۔
पुलिस पंचनामा करते हुए जुमा के दिन मकतूल लड़की की नाश को पोस्टमार्टम के लिए जिले सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। मोहम्मद फैज की गुमशुदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद और नौजवानों ने इस मासूम लड़के को तलाश करने की सरगर्म कोशिश की, लेकिन इसकी नाश दस्तयाब होने पर मुकामी अवाम में बरहमी की लहर फैल गई। वालिदैन पर गम का पहाड़ टूटा। सारे इलाके में बल्कि सारे शहर में इस वाक़े पर खौफ व हरास फैल गया और मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मोहम्मद फैज के कत्ल में मुकामी अनासिर या गैर मुकामी अनासिर मुलविस होने के अलावा कई शुबात जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इलाका सल्म और नई आबादी वाला इलाका पाया जाता है। यहाँ पर कोई सीसी कैमरा भी मौजूद नहीं है जिससे मासूम मोहम्मद फैज के कातिलों की शिनाख्त हो सके। मस्जिद आयशा के ट्रैफिक नाफ इलाकों में नस्ब करदा सीसी कैमरों का मुआयना किया जा रहा है ताकि कातिलों की शिनाख्त हो सके। मुकामी लोगों ने शुबा जाहिर किया कि मोहम्मद फैज को कातिलों ने ऑटो में अगवा किया है। वाक़यात में मुलविस अफराद की शिनाख्त, गिरफ्तारी और इन्हें सजाए मौत देने का अवाम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज से एक दिन कबल पेश आए इस वाक़े से सारे शहर में रंजो गम की लहर दौड़ गई। 6 टाउन पुलिस स्टेशन में मकतूल मोहम्मद फैज के वालिद मोहम्मद यूनुस ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुस्तकबिल में इस तरह के दर्दनाक वाक़यात की रोकथाम करे और इसमें मुलविस कातिलों की गिरफ्तारी अमल में लाए। शहर निज़ामाबाद में पेश आए 7 साला मासूम बच्चे के अगवा व कत्ल की वारदात पर रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर ने किया गम का इजहार। वो खातियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई करते हुए फांसी की सजा देने का किया मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। बेहद अफसोस की बात है कि एक मासूम बच्चा मोहम्मद फैज़ और उसके साथ जो बर्ताव किया गया, जो कैनाल में बच्चे को हाथ बांध के फेंक दिया गया, इंतहाई दर्दमंदाना ये हादसा है। जिस किसी दरिंदों ने ये काम किया है, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से गुजारिश करता हूँ कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो मुमकिन कार्रवाई हो सकती इन पे हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको फांसी की सज़ा सुनाए जैसा क़ानून तमाम इसके अरेंजमेंट्स करें। और मैं अपील करता हूँ कि ये मुकदमा भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए और ये दरिंदों को, जिसने भी ये हरकत की है, ये मासूम बच्चा तो जन्नती है, जिस लोगों ने भी ये मासूम बच्चों के साथ ये हरकत की है, इंशाअल्लाह उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। सारा फाउंडेशन व एमएसओ की जानिब से शहर निज़ामाबाद के सहाफ़ियों को रियासती सतह पर एजाज़ हासिल होने पर इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए दी गई तहनीत। उर्दू सहाफ़त की 200 साल की तकमील पर हैदराबाद में मुनक़दा इजलास में शहर निज़ामाबाद जिन सहाफ़ियों की खदमात की सताइश करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों तहनीत पेश की गई थी। इनकी निज़ामाबाद आमद पर शहर निज़ामाबाद की मशहूर मरूफ फलाही तंजीम सारा फाउंडेशन व मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उन सहाफ़ियों की खिदमत की सताइश करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन लेक्चरर सेक्रेटरी तबारक हाई स्कूल ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और सदर सारा फाउंडेशन शेख साबिर हुसैन की खिदमत की भी सताइश की। इस मौके पर इनकी जानिब से शहर निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अशफाक अहमद खान, एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स अहमद अली खान, नामा निगार रहनुमा दक्कन मोहम्मद बलीग अहमद, नामा निगार मुंसिफ एम.ए. रऊफ अज़मी, एडिटर इकजहती सैयद उस्मान अली, एडिटर फ़िक्र जमूर, एडवोकेट मोहम्मद ज़ीशान रज़वी, इंचार्ज रोशनी टीवी निज़ामाबाद, सैयद ज़फ़र अली। रोज़नामा सियासत को हैदराबाद में अवार्ड हासिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर मोतमिद आला सारा फाउंडेशन नवीन कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आसिम, फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद शहीर अहमद, एमएसओ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सोहेल बागबान, शेख ज़ीशान शोएब व दीगर मौजूद थे। कि जब अखबारात का आगाज़ हुआ था और उसमें उर्दू अखबारात का आगाज़ हुआ था तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू सहाफ़ियों की एक ऐसी तादाद थी जिसने अपनी जान पे खेल के उर्दू अखबारात का न सिर्फ आगाज़ किया बल्कि उसको बहुत बड़े पैमाने पे जारी किया।
खासकर वो पंजाब के यानी अफराद जो तर्क वतन करके हिंदुस्तान भी आए बंटवारे के बाद भी अपने साथ उर्दू की सारी सहाफ़त भी लाए। तकसीम में तो जब हिंदुस्तान से जो अखबार निकलते थे तकरीबन 150 के करीब, उनमें से मुश्किल से कुछ बच गए थे, बाकी तो पड़ोसी मुल्क भी चले गए। और ये बात भी कुछ कम अहम नहीं है कि 1857 की जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई समझी जाती है, उसमें भी उस वक्त जब ये गदर नाकाम हुआ तो तब भी मुसलमानों के हिंदू अफराद के जो अखबार बचे थे उसमें एक का भी एडिटर मुसलमान नहीं, बल्कि जो 6 अखबार बचे थे तो वो भी सारे के सारे हिंदू मुदीरों की इदारत में शाये होते। इससे बड़ी इत्तेहाद व यकजहती की बात। हर वो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड है, फिजियोथेरेपी करा डॉक्टर से आपके पास, हर सर्जरी करने तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये सब ये लोग को कहाँ पर पहुँचना, कैसा काम करना ये लोग को वे मालूम नहीं रहता। हम लोग पूरा वो लोग को गाइड करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग को हैदराबाद में न्यूज़ में भेजते हैं यहाँ से, या ऐसे बच्चों के कैंप्स लगते हैं वहाँ पे कैलिबर मिलता है वहाँ पे पहुँचते हैं, पूरा बताते हैं। और वो ऐसे बच्चों को एजुकेशन के लिए भी उन लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन रहता है, स्कूल्स रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, भविता सेंटर वहाँ पे ज्वाइन कराते हैं पेरेंट्स को, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी वीक में 1 टाइम दिया जाता है। यहाँ पे शंकर भवन में स्कूल है भविता सेंटर, वहाँ पे ज्वाइन करा है कई बच्चों को, पेरेंट्स को काउंसलिंग करके जज़ाकल्लाह से अंजाम दे रहे होते हैं। सारा फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम चल रही है निज़ामाबाद में कि बल्कि निज़ामाबाद में नहीं देहातों में भी जाके हम लोग जैसे है ना ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनकी ज़रूरत जो है, जैसा कि सदरम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है उनको, और बस पास, ट्रेन पास, इस तरीके के जैसे है ना जो भी पासेस है उनको सदरम स्लाइड बुकिंग जिस तरीके से करवाना है, उनको जैसे है ना काउंसलिंग कर रहे हैं पेरेंट्स को अक्सर। फिर उसके बाद में हम लोग फाउंडेशन की तरफ से जाके उन लोग को एक हेल्पिंग ये कर रहे हैं कि वो हमें पेंशन, जैसा कि पेंशन के लिए जैसे है ना उनको एक वे बताया जा रहा है, उनको काउंसलिंग कर रहे हैं कि यहाँ से ये ऑफिस से आप वहाँ पर जाके जैसे है ना काउंसलिंग करें, उनको जैसे है ना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि यहाँ पर जाकर वो आप अगला प्रोसेस करना है। सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से ऐसे ही माजूरीन बच्चों की खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके बानी जनाब साबिर साहब और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं तमाम ज़िले में पुरअमन माहौल की बरकरारी व भाईचारगी में इजाफे के लिए जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से एक और इक़दाम। उगादी त्यौहार के मौके पर जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से उगादी कार्ड का CP किया नगराजू के हाथों किया गया इफ्तिताह। हिंदू बिरादान वतन के नए साल के आगाज़ यानी उगादी त्यौहार के मद्देनज़र भाईचारगी व एकजहती का पैगाम देते हुए आज जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से उगादी कार्ड का ज़िले पुलिस कमिश्नर किया नगराजू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद रियासती मोतमिद अहमद अब्दुल हलीम, MPJ जिले सदर मोहम्मद ज़ाहिरुद्दीन, जमात इस्लामी शोबा दावा शेख हुसैन, MPJ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सज्जाद ने इन्हें नए साल की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि हर साल जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एकजहती व भाईचारगी के इजाफे के लिए एक दूसरे के ईद व त्यौहार में मुलाकात करते हुए खुशी का इजहार किया जाता है और ये उगादी कार्ड भी इसका एक जरिया है। పట్టణ ప్రజలకు ముందుగా నమస్కారం। ఈరోజు జమాతే ఇస్లాం హింద్ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది పురస్కరించుకొని ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకొని ఈరోజు అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈరోజు చిన్న ఒక కార్డు ఆవిష్కరించడం జరిగింది। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హిందూ ముస్లిం బాయిగా ఈ వచ్చే పండుగలన్నీ సందర్భంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఈ పండుగలు జరుపుకోవాలని, అలాగే అందరూ కలిసిమెలిసి సహజీవనం చేయాలనే వీరి యొక్క ఆకాంక్ష మన ఆకాంక్ష కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలు గౌరవించి ఈ యొక్క జమాతే ఇస్లాం హింద్ ఏదైతే ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు కాబట్టి వారికి మా కమిషనరేట్ తరఫు నుండి హృదయపూర్వక అభినందనలు। जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना की जानिब से हर साल उगादी के मौके पर हमारे हमवतनी भाई बरदरान वतन को इस मौके पर मुबारकबाद भी देते हैं और उगादी कार्ड्स हम अपने बरदरान वतन में तकसीम भी करते हैं। इसका मकसद दरअसल
ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنا ہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں مل کر کے اس ملک کے اندر رہنا ہے، اور اس ملک کی ترقی دراصل ہمارے آپس میں مل کر کے رہنے ہی میں ہے۔ تو یہ خوشیوں کا موقع ہے، ابھی اگادی کے موقع پر، کل اگادی ہے، اس موقع پر ہم اپنے برادران وطن کو اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ کل سے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اور رمضان کے موقع پر بھی ہم مسلم بھائیوں سے کہتے ہیں کہ رمضان کے پیغام کو عام کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے سارے تہواروں اور عیدوں کے اندر محبت کا پرچار کریں اور آپس میں مل کر کے رہیں۔ یہی پیغام اگادی کے موقع پر اور رمضان کے موقع پر ہم دینا چاہتے ہیں۔ بودھن کیس 12 افراد کی ضمانتیں منظور، مزید 3 کو گرفتار نہ کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر قائم کردہ لیگل ٹیم کی مؤثر پیروی کے نتیجے میں بودھن کیس میں ماخوذ کردہ 12 افراد کو ضلع عدالت نظام آباد سے ضمانتیں حاصل ہو گئی ہے، جبکہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسی کیس میں ماخوذ کردہ مزید 3 افراد بمشمول صدر ابتدائی مجلس بودھن جناب مشیر بابا کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی۔ تفصیلات کے مطابق 20 مارچ کو بودھن میں رونما فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعے کے بعد پولیس نے 32 افراد بمشمول مجلسی ذمہ داران ارکان بلدی کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات بمشمول 147، 148، 307، 353، 188 RW اور 149 کے تحت مقدمات درج کیے تھے، اور پھر 12 ارکان بلدیے دوسرے ذمہ داروں کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا، جن میں محمد ولی الدین کونسلر، شیخ خواجہ پاشا عرف سمیر، نوید رضا، شیخ اطہر احمد کونسلر، عبدالابرار، محمد افروز علی، شیخ سہیل خان، شیخ فاروق، TRS کونسلر سید میر نذیر علی عرف ڈبو، محمد عمران شریف کونسلر، شیخ فیروز شامل ہے۔ پولیس نے اس کیس میں صدر ابتدائی مجلس بودھن جناب مشیر بابا کے بمشمول ارکان بلدیے راشد اور سمیر کے خلاف بھی کیس درج کیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بودھن واقعے میں گرفتار 12 افراد اور ماخوذ کردہ دوسرے 3 افراد جملہ 15 افراد کو قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے جناب محمد جابر احمد صدر رشین بھالدیا بھینسا و صدر ضلع مجلس کو ذمہ داری سونپی تھی۔ جناب احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی حلقے ملک پیٹ و انچارج ضلع مجلس تنظیمی امور بھی ضمانت کے امور پر مسلسل نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ جناب جابر احمد نے بودھن کے ایڈوکیٹ جناب محمد واجد حسین اور دوسروں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے مجلس و TRS کے ارکان بلدی کی ضمانتوں پر رہائی کے لیے ضلع عدالت نظام آباد میں درخواستیں داخل کروائی، جبکہ صدر ابتدائی مجلس بودھن جناب مشیر بابا، راشد اور سمیر کی گرفتاریوں کو رکوانے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ سے احکام حاصل کیے گئے، جس کے لیے حیدرآباد کے ایڈوکیٹ جناب M.A. مقیم اور بھینسے کے ایڈوکیٹ جناب امتیاز الحق نے عدالت میں پیروی کی۔ یہاں اس بات کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بودھن واقعے میں ایک طرفہ گرفتاریوں کے خلاف 25 مارچ کو کمشنر پولیس نظام آباد کے ناگراجو سے ملاقات کرتے ہوئے بودھن واقعے کے اثر نو تحقیقات اور بے قصور افراد کے خلاف درج مقدمات سے دستبرداری پر زور دیا تھا۔ بیرسٹر اویسی نے ٹاؤن کے مجلسی قائدین محمد شکیل احمد فاضل، صدر ٹاؤن مجلس و فلوریڈا نظام آباد محمد ادریس خان، ڈپٹی میئر مجلسی نظام آباد محمد شہباز، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن بلدیے شریک معتمد مجلس اعجاز حسین کو بھی محروس ارکان کو قانونی مدد کی فراہمی میں تعاون کی ہدایت کی تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین ڈویژن نمبر 60 کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم کا ایک اور شاندار کارنامہ، محمدیہ کمیٹی ہال میں جدید تعمیر کرواتے ہوئے تمام سہولیات سے کیا راستہ و ماہ رمضان میں خواتین کے لیے تراویح کے مکمل عمارت میں ایئر کنڈیشن کی نصب۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محمدیہ کالونی کمیٹی ہال میں مجلس اتحاد المسلمین نمائندہ کارپوریٹر حلقہ 60 محمد عبدالغفور مقیم کی نگرانی میں رمضان المبارک کے چاند رات سے نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موسم گرما کے پیش نظر مصلیوں کی سہولت کے لیے عبدالغفور مقیم مجلسی نمائندہ کارپوریٹر نے محمدیہ کمیٹی ہال کو ایئر کنڈیشننگ سے آراستہ کروایا۔ اس موقع پر مولانا مفتی محمد الطاف
की मुफ्ती कोर्स की तकमील पर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हल्के ने हल्के 60 की अवाम की जानिब से गुलपोशी और शालपोशी करके मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ साहब तरावी में रोजाना 2 पारे सुनाएंगे। नमाज इशा ठीक 8:08 को अदा की जाएगी। अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकने पार्लिमान हैदराबाद कायद मुखन्ना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, फ्लोर लीडर तेलंगाना असम्बली व रुकने असम्बली चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद, अहमद बलाला निजामाबाद इंचार्ज रुकने असम्बली मलकपेट हैदराबाद, बिगाला गणेश गुप्ता अर्बन MLA निजामाबाद, श्रीमती नीतू किरण मेयर निजामाबाद, इदरिस खान डिप्टी मेयर निजामाबाद और चित्रा मिश्रा इंचार्ज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन व एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साथ में हाफिज मोहम्मद असद, खतीब व इमाम मस्जिद स्टेशन, सीनियर सिटीजन आबिद अली, डॉक्टर अजीज शतारी, सेक्रेटरी नेशनल हाई स्कूल मस्तान वली, शब्बीर अहमद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद फिरदौस, अब्दुल मुकीत व दीगर वार्ड के जिम्मेदारान मौजूद थे। कॉलोनी में यहाँ कमेटी हाल में हाफिज मोहम्मद असद साहब अब जो मुफ्ती अल्ताफ साहब सुनाएंगे और पिछले 5 साल से हमारे हाफिज साहब अल्ताफ साहब जो है ना कुरान सुना रहे थे और पहले हाफिज थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुफ्ती हो चुके हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, मोहल्ले की जानिब से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह यहाँ पर चांद रात से तरावी का अहतमाम किया जाएगा और नमाज के औकात रहेंगे 8:20 पर इशा की नमाज अदा की जाएगी और 8:30 बजे तरावी अदा की जाएगी। मैं डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरावी में शिरकत करें और सवाब दारे में हासिल करें। मासूम बच्चे के खातियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए महकमे पुलिस बेबाक अंदाज में काम करे। डिप्टी मेयर इदरिस खान, फ्लोर लीडर शेकिल फाजिल व मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने किया मुतालबा व मौके वारदात व हॉस्पिटल पहुंचकर कानूनी इमदाद। आज शहर निजामाबाद के इलाके नए ब्रिज पर मासूम बच्चे के साथ पेश आए वाक़े की इत्तला पर शहर निजामाबाद डिप्टी मेयर इदरिस खान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरी सदर व बल्दिया फ्लोर लीडर शेकिल फाजिल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बर वक्त मौके पर पहुँचते हुए हालात का जायज़ा हासिल करते हुए हॉस्पिटल पहुँचकर कानूनी कार्रवाई को जल्द जल्द मुकम्मल करवाया। इसी तरह पोस्टमार्टम को साफ और शिफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाते हुए महकमे पुलिस के ओहदेदारों से मुतालबा किया कि इस वाक़े की बेबाक अंदाज में जांच की जाए और खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने का इन्होंने मुतालबा किया और इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में न हो, इसके लिए कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अफसर बेग, मोहम्मद सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। टीएस रेडको चेयरमैन एस सलीम व टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस ने टीआरएस पार्टी सीनियर व हरकियाती कायद रफ़ीक कुरैशी के घर पहुंचकर की मुलाकात व किया मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। आज टीएस रेडको चेयरमैन एस सलीम, टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस ने आज टीआरएस पार्टी हरकियाती कायद व ज़िले सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी रफ़ीक कुरैशी के दफ्तर पहुंचकर मुलाकात करते हुए उनसे पार्टी की कारकर्दगी की तफसीलात हासिल की और इनकी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया और मुस्तक़बिल में मज़ीद पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात लेने का इन्होंने इजहार किया और इनकी सियासी और समाजी खिदमात को आगे भी इसी रफ्तार के साथ जारी रखने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा नोडा डायरेक्टर अख्तर खान व दीगर मौजूद थे। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 43 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की स्कीम से मुताल्लिक़ चेकों के अवामी नुमाइंदों ने रायतु वेदिका भवन में मुस्तहक़ी में फराहमी अमल में लाई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर एमपीपी एल गौतमी सुमन व एमआरओ बावैया के अलावा मंडल कोऑप्शन मेंबर पाशा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 43 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक
स्कीम से मुताल्लिका चेकों की रायतु वेदिका भवन मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रायतु सामान्य समिति सदर बी राजेश्वर, बालकुंडा सामान्य समिति मेंबर्स अहमद भाई, सरपंच एस अशोक, गंगाधर, माइनॉरिटी सदर नवाब पाशा व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की दौरे इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना के मुस्तहिक व गरीब लड़कियों की शादी के लिए इनके अखराजात में मदद करने की खातिर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाने के बाइस आज कई लोग इस स्कीम से इस्तिफादा कर रहे हैं। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई गई तमाम स्कीमात बिलखुसूस शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, डबल बेडरूम्स, आत्मनिर्भर के अलावा दीगर अहम स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाए हुए हैं। काबिल तलक़ीद स्कीमात कहलाए जा रहे हैं और इन्हीं स्कीमात की बदौलत तेलंगाना की अवाम में मुस्कुराहटें दौड़ती जा रही हैं और रियासत के तमाम तबक़ात में स्कीमात को लेकर इंतहाई खुशी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के तमाम तबक़ात के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से माह रमज़ान के मौके पर औक़ात का इफ्तिताह। जनाब विमला प्रशांत रेड्डी वज़ीर इमारत और शोरा व हाउसिंग ने आज रिहाइश गाह पर रमज़ान मुबारक के निज़ामुल औक़ात कैलेंडर की रस्म जाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद दी। ये निज़ामुल औक़ात हल्क़ा असम्बली बालकुंडा की तमाम मसाजिद और मुसलमानों तक पहुँचाया जाता है। हर साल ये कैलेंडर तक़सीम किया जाता है। इस मौके पर ज़िले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज़, हाफिज़ रियाज अहमद, मोहम्मद अतीक, सदर अंजुमन बाबापुर, हाफिज इलियास, मोहम्मद मसरूर, अब्दुल्ला अयूब, मोहम्मद फैयाज, बालकुंडा मंडल कॉर्पोरेशन, मोहम्मद अब्दुल मंजूर पाशा भाई, कमरपल्ली मंडल माइनॉरिटी सेल सादुल्ला व दीगर मौजूद थे। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने TRS के सीनियर कायद स्कूटर सत्यनारायण की अयादत करते हुए हुकूमत की जानिब से मुमकिना तौर पर मदद फराहम करने का दिया तयक़ुन। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने TRS के सीनियर कायद सत्यनारायण की नासाज तबीयत व इनके अफराद खानदान की माशी हालात मुस्तहकिम न होने के मुतालिक हासिल करदा इत्तला पर चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने इनके घर से रुजू होकर इनकी अयादत करते हुए सेहत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के अलावा ज़ाती रकम से मदद फराहम करने के साथ साथ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर मुमकिना तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। मशकूक को मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें, साइबर क्राइम मुजरिमीन की धोखाधड़ी को नाकाम बनाने का एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर विनीत ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के बोरगम में वाक़ ZPHS स्कूल में सदर मुदरिस के ज़ेर निगरानी मुनक़दा साइबर क्राइम के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर विनीत ने शिरकत की और तलबा से खिताब करते हुए बताया कि मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें। बैंक अकाउंट या ऑनलाइन लेन देन के जरिए साइबर क्राइम मुजरिमीन धोखा देते हुए रकम हासिल करने पर फौरी तौर पर बैंक खाते को फ्रीज कर रहे हैं और आगे आकर पुलिस से शिकायत करने का इजहार किया। इस मौके पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से DCP विनीत को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP विनीत, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबरान बाइसा सुनीता, नवीन, सुमलता, प्रिंसिपल श्रीकांत, VDC चेयरमैन साई रेड्डी, टीचर्स व तलबा ने शिरकत की। रियासती वजीर पंचायत राज इराबेली दियाकर राव के हाथों अवार्ड हासिल करने वाले DRDA चंदन नायक को ZP दफ्तर में जिले सदरनशीन जिले प्रजा परिषद D विठल राव व ZP CEO गोविंद नायक ने तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। त्रिनिधि स्कीम के अलावा तमाम मैदानों में ज़िले निज़ामाबाद को अव्वलीन मुकाम हासिल होने के बिना पर बरोज़ जुमेरात शहर हैदराबाद में रियासती वजीर पंचायत राज इराबेली दियाकर राव के हाथों अवार्ड हासिल करने वाले DRDA PD चंदन नायक, सदरनशीन जिले प्रजा परिषद विठल राव व ZP CEO गोविंद नायक ने ZP दफ्तर में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दिल के गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इंप्लीमेंट చేసేది అధికారులు కాబట్టి ఇద్దరు సమన్వయంతో ఉంటేనే ఏదైనా ముందుంటుంది కాబట్టి మరి మొన్ననే 9వ వార్షికోత్సవంలో జరిగిన మహాజన సభలో మా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు నుంచి అవార్డు అందుకున్న చందన్ నాయక్ గారికి మరి నా తరఫున జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లా తరఫున ఆయనకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు।
इम्तिहानात के दौरान वालिदैन अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने का जिले पुलिस कमिश्नर कियार नागराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नागराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शहर के पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में पुलिस मुलाजमीन की कल्चरल टीम की जानिब से समाज में रूनुमा होने वाले जुराइम के मुतालिक अवाम को अब तक 50 शोर बेदारी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाने के अलावा खवातीन से मुताल्लिक़ मसाइल को भी ड्रामे के जरिए तमाम तरीन मालूमात फ्राहम की गई। इन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के इम्तिहानात के मौके पर इनकी सही रहनुमाई हिम्मत अफजाई करने के अलावा वक्त ब ज़रूरत इनको मुफीद सलाह व मशवरे देने से बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, जिससे तलबा अपनी मखसूसी सलाहियतों को निखारने में मदद मिलने का इजहार किया। उगादी त्यौहार के मौके पर तेलंगाना में मुक़ीम अव्वाम को रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दी मुबारकबाद। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने उगादी त्यौहार के मौके पर ज़िले के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उगादी के शरबत में रहने वाले साथ जायक़े की तरह ही ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव यानी सख्त तरीन मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने के बाइस ही हालात पर काबू पाया जा सकता है। इसीलिए हर एक फर्द एहसास कमतरी का शिकार न होकर मुस्तकिल मिजाज अपना कर दुश्वार कुन मरहलों पर फतेह हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस CM KCR 90,000 से ज़ायद मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। इस तमाम उम्मीदवार सख्त मेहनत करते हुए T-SET के तहत TV व YouTube पर दस्तियाब मवाद को इस्तेमाल करने के अलावा दीगर एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। శుభాకాంక్షలు। ఈ సంవత్సరం శుభకృత్ నామ సంవత్సరంగా పిలువబడతా ఉంది। ఈ సంవత్సరం మనందరి జీవితాల్లో కూడా మంచి శుభాలను తీసుకురావాలని మనందరం కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను। ఈ సంవత్సరం మొత్తం తెలుగు వారందరూ శుభకృత్నామ సంవత్సరంగా చేసుకుంటుంటే మన తెలంగాణ యువ మిత్రులు మాత్రం ఉద్యోగనామ సంవత్సరంగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నారని చెప్పడానికి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను। ఎందుకంటే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రైవేట్లో అనేక పరిశ్రమలు వచ్చి లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా దాదాపు 90,000 పైచిలకు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ మనం వేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సంవత్సరం మరి అనేక ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి T-SAT అనేటటువంటి ఛానల్ని విరివిగా ఉపయోగించుకోండి। అది ఫ్రీగా ఉంటుంది। చాలా మంచి కోర్స్ మెటీరియల్ అంతా కూడా తయారు చేసి తెలంగాణ యువతి उगादी त्यौहार के मौके पर जिले की अवाम को कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नागराजू ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कियार नागराजू ने उगादी त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने के लिए रियासत में अमन व इत्तेहाद की यकीनी तौर पर बरकरारी रहने के अलावा रियासत में भाईचारगी व इत्तेहाद व एकजहती के कायम रहने से ही रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार करते हुए तमाम अवाम को उगादी त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की। AICC के अहकामात के मुताबिक ज़िले माइनॉरिटी कांग्रेस सदर इरफान अली के ज़ेर निगरानी में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। AICC के अहकामात के मुताबिक ज़िले माइनॉरिटी कांग्रेसी सदर इरफान अली के ज़ेर निगरानी में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर के इलाके किला रोड पर पुरजोर एहतजाजी धरना मुनक़्क़द किया गया। इस एहतजाजी धरना प्रोग्राम में ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी व अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में पकवान गैस व पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करने की बिना पर हर एक फर्द पर 5,000 से जायद बोझ आयद करते हुए गरीब अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आर गोपी, जिले के NSUI सदर वेणु राजू, रियासती माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान, ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान, डिवीजन नंबर 38 कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, कांग्रेस की नायब सदर जाहिद बिन हमदान, मुजाहिद खान गोपी, विपुल, नवाज, मुस्तफ़ा, मोइन व दीगर ने शिरकत की। ఈ దేశ ప్రజలపైన పెనుభారం మోపిస్తూ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ అదేవిధంగా పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ ధరలు పెంచుతూ సామాన్యులను నడ్డి విరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి। ఈ సందర్భంగా ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా TRS BJP వీరికి తోడైనటువంటి MIMలు ముగ్గురు కూడా ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజలను నడ్డి విరవడానికి और हमारे स्टेट चेयरमैन जनाब शेख सोहेल साहब के इंस्ट्रक्शन पे
आज ये जो महंगाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो तेलंगाना के आवाम को और हिंदुस्तान के आवाम को जो सता रहे हैं, जो डीजल गैस पेट्रोल और आम खाने की चीज़ें जो रेटा बढ़ा के जो परेशान कर चुके, उस बुनियाद पे आज हम खिला रोड पे आम आदमी के आवाज़ से आज यहाँ पे ठहरे धरना कर रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रदेश के सदर रेवंत रेड्डी साहब के हुक्म के मुताबिक निज़ामाबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर इरफान अली साहब के सदारत में गैस पेट्रोल डीजल के दाम गुज़िस्ता 7-8 साल से बीजेपी की हुकूमत मोदी की सरकार जो बढ़ाते हुए आ रही है। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज को तिब्बी इमदाद फराहम करने के दौरान मरीज की हुई मौत। डॉक्टर अर्चना शर्मा पर मुकदमा दर्ज करने के बिना पर दिल बर्दाश्त होकर की खुदकुशी। ज़िले निज़ामाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में IMA तिब्बी अमले ने आज दोपहर 6-7 बजे जिले के सरकारी हॉस्पिटल से राजीव गांधी तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा को ताज़ियत पेश की गई। इस मौके पर IMA के सदर व सेक्रेटरी डॉक्टर के सुभाष डॉक्टर जलगम तिरुपति ने खिताब करते हुए कहा कि राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज को तिब्बी इमदाद देने के दौरान मरीज की अचानक मौत वाक़ होने के बिना पर डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ मर्डर केस का इंदराज होने के बायस डॉक्टर अर्चना शर्मा दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी करने को काबिल अफसोस करार दिया। డాక్టర్ పైన డాక్టర్ అర్చన శర్మ గారి పైన అటెంప్ట్ మర్డర్ కేస్ అంటే సెక్షన్ 302 అన్నమాట. ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏదైనా హత్య చేసినప్పుడు మాత్రమే అట్లాంటి సెక్షన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏ డాక్టర్ పైన కూడా ఇలాంటి సెక్షన్స్ విధించకూడదని చెప్పడం జరిగింది. అసలు ఈ మర్డర్ సెక్షన్ పక్కన పెట్టండి, కనీసం FIR కూడా నమోదు చేయకూడదనేది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ఒకవేళ FIR నమోదు చేయాలంటే ఒక కాంపిటీటివ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ మెడికల్ కమిటీ అవును నిజంగానే చాలా నెగ్లిజెన్స్ జరిగిందని నిర్ధారణ జరిగితే తప్ప, ఒక కమిటీ వేసిన తర్వాత తప్ప ఇలాంటి FIR కేసు నమోదు చేయడం కానీ లేకపోతే भैंसा शहर की 100 SC लड़कियों में रुकन असम्बली मुधुल जी विठल रेड्डी के हाथों सिलाई मशीन की तकसीम अमल में लाई गई। भैंसा शहर के SC बेरोजगार लड़कियों को रोजगार के मौके फराहम किए जाने के गर्ज से SC कारपोरेशन की जानिब से मुफ्त टेलरिंग सिखाया गया था, जिसका आज इख्तिताम अमल में आया। इसमें हिस्सा लेकर टेलरिंग सीखने वाले 100 से जायद लड़कियों में रुकन असम्बली मुधुल जी विठल रेड्डी के हाथों सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मिशन हासिल करने वाली लड़कियों की जानिब से रुकन असम्बली मुधुल जी विठल की सराहना करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में रुकन असम्बली मुधोल जी विठल राव व दीगर TRS कायदीन ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए जा रहे स्कीमात पर रोशनी डाली और मुस्तकबिल के मंसूबे से भी तमाम खिदमात को फायदा पहुंचाने का तयखुन दिया। इस मौके पर ज़राई कमेटी चेयरमैन P कृष्णा, भैंसा टाउन इंचार्ज सदर टोटा रामलू, ज़राई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहर में 7 साल मासूम बच्चे का अगवा व कत्ल की वारदात से सनसनी, जाती दुश्मनी या फिर तौहम परस्ती, अगवा कश्मकश में कई अफवाहें गश्त, महकमे पुलिस तहकीकात में मसरूफ। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से माह रमजान में सहरी व अफ्तार की निज़ामुल औक़ात की रस्मी जारी व माह रमजान की दी मुबारकबाद। 7 साल मासूम बच्चे की कत्ल की वारदात पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया अफसोस का इजहार व कातिलों को जल्द जल्द गिरफ्तार करते हुए फांसी की सजा देने का महकमे पुलिस से किया मुतालबा। उगादी त्यौहार के मौके पर जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से उगादी कार्ड की जिले पुलिस कमिश्नर किया नागराजू के हाथों इफ्तिताह। राजस्थान में ज़ेर इलाज मरीज की मौत पर डॉक्टर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के गम में डॉक्टर ने की खुदकुशी। इस वाक़े के खिलाफ शहर निज़ामाबाद में IMA की जानिब से दर्ज किया गया एहतजाज।
महंगाई से पाक हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल सदर इरफान अली की क़यादत में शहर के अक़लियती इलाके में जोरदार एहतजाज दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।